Good evening, everybody. Good evening, viewers. And today, on 10th episode of In Discussion with, on the platform of Prowess Learning and Consulting, I am Major General Sanjay Soi, and I have the proud privilege to host the today's episode. I retired from Army in October 18, and after putting in more than 36 and a half years of service, got commissioned in Kumaon Regiment, moved to Naga Regiment, commanded Naga Regiment, and took part in number of operations and had 7 postings in Jammu and Kashmir. Today, I feel blessed that I have the honor to host my guru, my mentor, and my teacher, Mr. Jagdish Luthra, who responded to bleak word with resilience, piercing all darkness with dogged determination and fortitude. He possesses indefatigable energy and keen desire to learn and adapt. I'll tell you more about him later. There's a lot to learn, lot to tell, and lot to listen from him. So happy to announce that in today's discussion, we have some of the old class and his students with us who will share their experiences. On the screen, you can see Mr. Sanjay Sharma. He's been the sir student, आज Joint Commissioner of Customs in Delhi हैं. He's put in about 36 years of service, deals with variety of subjects, including assessment of custom duty, export promotion, intelligence and investigations. At present, when the situation has changed to facilitative system based on self-declaration, and he's also now working on converting the office environment to e-office and also thinking of working from home as is being done in the corporate sector. I think that's the way to go. If in the government sector this can be done, it is going to be a very, very bold statement and bold action. It will save a lot of efforts, and I think it will increase more transparency. Next on the screen is Seema Chaudhary. She is running her own coaching institute under VMC franchisee in Dehradun and Shamli. She has been in education sector since 1992, having taught in Meerut, Shamli, Delhi, and now she has moved to Dehradun. She has been imparting, having learned the same values, the values from Rosemary. She has also been into social service and has been imparting free education to the needy children. We have Mrs. Kalpana Saxena. I think she's gone offline now at present. She's trying to join in. She is at present, she's IPS officer and she is commandant of 49 Battalion. Yeah, she is. Welcome, Kalpana. In between, you're missing for some time. Can you hear us? Kalpana? I think there's some network issue might be there, which is happens in technical this thing. But she has been SP Intelligence Meerut, SP City Saharanpur, SP Crime and Rural Muzaffarnagar, SP Traffic Bareilly, and SP Traffic Bareilly and SP City Bijnor. He's been recipient of Red and White Bravery Award. Hello? President
Police Medal and DG Police Commendation there. She has been leading her troops from the front and leading by example. And more about her and more about our students as we go ahead. I think Aparna Sharma is another guest today. He is trying to join in. Again, some technical problem is there. Anyway, once she joins, I'll tell about her. And as it is, we'll be talking about each other. Coming to sir. सर, सबसे पहले नमन, आपको प्रणाम। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला कि अपने मेंटर गुरु को होस्ट करने का। He has been founder of Rosemary Institute, born in July 1950 and was visually challenged since birth. He could not see the words, but did not stop him from having a great vision and commitment. He did his master's in philosophy, 4 years in Indian classical vocal music and tabla, received number of felicitations, and he did his 10th from Dehradun, 12th from NS College Meerut, and BA and MA from Meerut College Meerut. 40 years experience and more than 50,000 students have been benefited from his guidance, his thought process, and are in different field of life. He's been delivering lectures on different forums, and he's member of organizations and recipient of number of awards for his contribution to society in the fields of music, visually impaired people, and social development work. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शायद हम स्टूडेंट्स को एक मौका मिला है कि आपसे बातचीत करें, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ आपके एक्सपीरियंस देखें और किस प्रकार से ये जिंदगी निकली है उसको देखा जाए। सबसे पहले जो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे व्यूअर्स की भी एक इच्छा रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है सबके लिए कि यू हैड मेजर फिजिकल चैलेंज, फिर भी आपने मास्टर्स किया फिलॉसफी में, इसके अलावा 4 साल आपने म्यूजिक का कोर्स किया। तो मैं पहले ये हम लोग जानना चाहते थे कि स्टूडेंट डेज में किस प्रकार की चैलेंजेस आपने फेस किए और किस प्रकार से आपने उनको ओवरकम किया, ताकि उस चीज को आप ये कल्पना जी ज्वाइन कर गई है मेरे ख्याल से। सर चलिए बोले। Yes. Good evening, my Rosemary family members. My dear brothers and sisters, and I shall say children, जिस दिन हम सबको ये समझ में आ जाता है कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, तो हमारे जीवन का हर अंग, हर अंश, हर लम्हा फुल ऑफ एनर्जी हो जाता है। और ये बात मुझे मेरे पेरेंट्स से व्हेन आई वाज ऑफ 10 years एज, और देहरादून मेरे एजुकेशन के लिए मुझे एडमिट कराया गया NIVH मॉडल स्कूल
फॉर द ब्लाइंड में, तब मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स से कहा कि अगली बार से आप न इन्हें छोड़ने आएंगे और न लेने आएंगे। मेरे फादर, मेरे ब्रदर, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात सिखाई और समझाई कि आपके न रहने के बाद इस व्यक्ति का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। सो लेट हिम गेन कॉन्फिडेंस। नथिंग हैपन टू दोज wrong or negative, those who are brave. And it is true that fortune favors the brave. प्रथम बार दिवाली की छुट्टियों में जब मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आए तो वापस जाते समय उन्होंने मेरी जेब में एक स्लिप रखी, ऊपर की जेब में, और उसमें एड्रेस और सब कुछ लिख दिया और एक पोस्ट कार्ड भी रख दिया ताकि मैं वहां पर पहुंच के कंडक्टर भैया से कहूं कि इसे पोस्ट कर दो। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसने मुझ में ऑप्टिमिज्म, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस गेन किया। सेकेंडली, जब इसमें हम और आगे जीवन को बढ़ाने में चले तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने रोज एक दिन छोड़कर हम लोगों से पूछना शुरू किया कि आप कौन हैं। मुझे याद है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कैसे, और एक पोएम रटाई, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारो आज, आओ विचारें आज हम मिल, ये समस्याएं सभी। तो सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन ने तो ये सिखाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दूसरी चीज जो मुझे शिक्षा के दौरान सीखने को मिली वो थी वांट ऑफ डिजायर्स मस्ट बी देयर। इच्छाएं बहुत नहीं होनी चाहिए। कल्पनाओं में, ड्रीम्स में, कासलिंग में मत जियो, रियलिटी को समझो और साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा अपने मन को कंसंट्रेट करो। क्यों? ईश्वर ने आपको इसीलिए भेजा है। और उसका प्रमाण में अक्सर वो कहते थे कि सारे समाज को एक ही बात कही जाती है कि जब आपको ध्यान करना होता है, भक्ति करनी होती है, तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तो गॉड द ग्रेट ने तो आपको ये अवसर फ्रॉम द डे दिया है और आप एनालाइज करो ताकि आपकी दृष्टि से ज्यादा दृष्टिकोण अच्छा हो सके और नजर से ज्यादा नजरिया पॉजिटिव, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो सके। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज, और सेकेंडली जब हम 9th और 10th में आ गए तो हमारे टीचर्स ने हमको टास्क दिए कि आज तुमको 100 रुपीज अर्न करके लाने हैं। हमें चूरन दे दिया गया, हमें मूंगफली दे दी गई, हमें मंजन दे दिया गया और कैसे उसे बैग में लेकर के टेम्पल्स में और ट्रेन्स में, बसेस में जाकर के मूव करके उसे सेल करेंगे। हमें वर्क करना है, हमें भिक्षा नहीं मांगनी है। तो जो पैसा हम अर्न करके उन्हें देते थे वो हमारे ही फंड्स में जमा कर देते थे। और जब हमको स्कूल को मिला तो आपको आश्चर्य होगा कि 1968 में मेरे पास 5,000 रुपए थे और वो दान में नहीं दिए गए थे, दक्षिणा में नहीं दिए गए थे, बल्कि हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई कि ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। उसका परिणाम 73 में जाकर एक बार हुआ कि हमने डिसाइड किया, जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स ले लिए थे, कि हम गवर्नमेंट से कहें कि अगर SC, ST, OBC इन सबको रिजर्वेशन है तो व्हाई नॉट टू
फिजिकली चैलेंज पर्सन्स। इसका काफी विरोध हुआ, लेकिन तो फिर हमने उस विरोध को टालने के लिए क्या किया, हम 9 साथी थे जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर गए, घर से जूते पहनकर गए थे, बैग्स में हमारे रादर चप्पल थी, फुटवेयर थे और पॉलिश और ब्रश था। वहां जाके लगभग 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम सब लोगों ने अपनी प्लेस बनाई और कहा बुट पॉलिश। तो हमें पुलिस ने बोला कि व्हाई डोंट यू गो टू दिस चांदनी चौक फॉर द सेम। हमने बोला वहां पर 10 पैसे मिलेंगे, यहाँ 10 रुपए मिलेंगे, वही एमपी 10 रुपए देगा और वही कॉमन में 10 पैसे देगा, तो यू कैन बी अरेस्टेड। तो हमने कहा हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, हमें बी ग्रेड खाना तो तुम दोगे ही, तो इट इज नो प्रॉब्लम। हमारी पर्पस तो, हमारी नीड तो फर्स्ट अपनी वैली को, अपने स्टमक को फिल करना है, ले चलो। तो वहां जब हमें वो ले गए और उन्होंने हमें खाना खिलाया तो हमने कहा इट इज नाइदर न्यूट्रिशियस एंड नॉट हेल्दी। तो दे रैंक टू द स्पीकर पार्लियामेंट कि इनके साथ ये कभी कहते हैं वॉशरूम जाना है, कभी कहते हैं ये जाना है, हम क्या करें। तो उन्होंने डांट लगाई, तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया इन्हें। हमने तो सिर्फ पार्लियामेंट सेशन के एंड होने पर, जब तक एमपीज अपने घर जाएं तब तक के लिए इन्हें अरेस्ट बनाया था। तो हमने कहा अच्छा इट वाज अ चाल, हमारे साथ मजाक कर रहे थे, अब हम नहीं जाएंगे। हम अगर कृष्ण का जन्म जेल में हो सकता है तो हम तो जिंदगी भर यहाँ रहने के लिए आए हैं भाई। और या गवर्नमेंट से प्रॉमिस कराओ कि जो नीडी हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो वॉक ऑफ लाइफ था, स्टाइल ऑफ लाइफ था, वे ऑफ लिविंग था, वो इस तरह से आगे बढ़ता गया, मंजिलें मिलती गई। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि आई मस्ट टेक स्कॉलरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे बर्सरी बोलते हैं, दया के नाम पर छात्रवृत्ति दे दो कि ये हैंडीकैप है। तो वो इसीलिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंटर किया और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे छात्र हैं जैसे आप लोग। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ माय स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ है। और वेल बिगन इज हाफ डन जब कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने वाइस प्रेसिडेंटशिप, स्पीकर होल्डिंग पोस्ट वगैरह वगैरह, जो कुछ भी छात्र यूनियन में मेरठ कॉलेज में संभव था वो मैंने किया। और मैंने वहाँ की लेक्चररशिप केवल इसलिए छोड़ी कि लोगों ने कहा इन्हें तो रिजर्वेशन के बेस पे मिली है। अच्छा, तुम 365 दिन तनख्वाह लेकर के 65 दिन पढ़ाते हो और हमारे लिए ऐसी बातें करते हो। तो मैंने उसी समय रिजाइन दिया और अपना पर्सनल इंस्टीट्यूशन बाय नेम, वैसे 68 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, 75 में इसको रोजमेरी इंस्टीट्यूट के नाम से शुरू किया, 71 में इसे शुरू किया था रोजमेरी इंग्लिश लर्निंग स्कूल। तो ये थी यात्रा का प्रारंभ। आगे जैसे जैसे आप लोगों के बारे, हाँ नहीं, मैंने ये तो वाकई में जिसको कहते हैं ना कि लड़ते भिड़ते हुआ, जिसका कोई शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि किस प्रकार एक पूरे उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और एक अपने लिए ही नहीं खड़े हुए। तो ये वाकई में और उसके बाद जब वो यूनियन में रहे, एक छात्रों का एक लीडर रहे, ये चीजें शायद बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या ये संभव है, क्या ये हो सकता है। और उस समय में, आज तो फिर भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, उस समय में एक बहुत बड़ी चीज थी। तो सर आपको मेरा नमन, सैल्यूट इसके बारे में। और फिर जैसा हमने देखा, आपने शिक्षा ली और आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट खोला, और शायद फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं रहा होगा जैसा, वैसे जब हमने ज्वाइन किया था तो वाकई में एक कमरे में बैठते थे हम कुछ बेंचेस पे। तो ये क्या ट्रिगर था कि आपने सोचा कि एजुकेशन फील्ड में जाना है, और एक जो अपने विचार हैं, जो एक
क्योंकि हमने सभी, आज हम स्टूडेंट यहाँ पर हैं, एक हमेशा ही आपने चरित्र के ऊपर दिया है, एथिक्स के ऊपर दिया है, इन्हीं चीजों पर जोर रखा, डिसिप्लिन के ऊपर बहुत जोर रखा कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसके ऊपर कोई वो नहीं था। तो ये जर्नी, ये जो एजुकेशन फील्ड में आने का आपका ट्रिगर क्या था, क्या इसके पीछे फैसला क्या, क्यों लिया आपने? देखिए, यूँ तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि छात्र ही छत्र बनते हैं, तो मेरी तब भी ये इच्छा थी कि मैं आईएएस में अपीयर करूं, लेकिन उन दिनों में फिजिकली डिसेबल्ड को, स्पेशली विजुअली हैंडीकैप पर्सन्स को इसलिए नहीं लिया जाता था कि उनके डिसीजन टेकिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं से डिस्ट्रक्ट होगी। तब मैंने इरादा किया कि आई शुड गो फॉर लॉ, तो मुझे बताया कि आपके सीक्रेट्स लीक होंगे, ये सब मुझे भी समझ में आया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह, एक ऐसे ढंग से खोलूं जिससे कि हजारों बच्चे आईएएस होंगे, हजारों बच्चे आर्मी में होंगे, हजारों बच्चे कॉरपोरेट सेक्टर में होंगे, हजारों बच्चे प्रोफेशनल्स होंगे। परिणाम क्या होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मैं इन सबके माध्यम से आई विल मेक सोसाइटी नो वन कैन डू इफ वन डिजायर्स। और उस तरह से मैंने पर्सनल लेवल पर एक रूम से, क्योंकि घर वाले भी नहीं चाहते थे कि एजुकेशन को आगे इसलिए बढ़ाया जाए कि एमए पीएचडी हो जाएगा तो होगा क्या, बट आई बिलीव कि किसी के पास डिग्री होना, सर्टिफिकेट होना, डिप्लोमा इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन वन शुड बी ब्रॉड माइंडेड, फोर साइटेड एंड ऑप्टिमिस्ट। इसके लिए मैंने शेक्सपियर को जब पढ़ा तो उनको एक दिन नौकरी करते समय, जब वो किसी शराब की फैक्ट्री में काम करते थे, तो उन्हें किसके लिए रखा गया था? बोतलें धोने के लिए। एक महीने बाद फादर जब गए उसकी सैलरी लेने, वेजेस लेने, तो जो ऑनर था उसने बोला कि भाई इसने कुछ काम ही नहीं किया, ये तो लोगों के साथ बातें ही करता रहता है, इतना छोटा बच्चा, आपको इसे भेजना ही नहीं चाहिए था। तो एकदम उस बच्चे की जब पिटाई हुई तो उसने बोला, पापा मर्सी टेक, आई शैल नेवर पोइट्री मेक। और आज उस महान विभूति पर कितने लोग रिसर्च कर चुके हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से मुझे लगा कि हिंदुस्तान से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। मानसिकता हमारी गुलामी की ही है, तो पहले क्यों ना गुलामों को गुलामी की चीजों से सिखाया जाए। मीन्स मैंने ये सोचा कि अंग्रेजी बिजनेसमैन की, सर्विस क्लास की, प्रोफेशनल्स की, सभी की एक कमजोरी तो है। पहले कांटे से कांटा निकालो और अंग्रेजी सिखाकर अपना लेवल भी ऊपर करो और इन लोगों से भी पैसा अर्न करो। इसलिए मैंने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोजमेरी रखा। मैं एकलव्य भी रख सकता था, मैं निष्काम भी रख सकता था, मैं कुछ और भी रख सकता था, लेकिन एक तो लोगों को डाउट हो कि ये बंदा क्रिश्चियन है या रादर कोई और है। दूसरा, मैंने जो है उसी जमाने से अपनी बीएड बढ़ाई, लोगों को डाउट हो कि किस संप्रदाय से है, किस जाति से, किस धर्म से, ये कंफ्यूजन ना हो। और तीसरी मेरी कोशिश रही कि जब मैं हाई स्कूल के बाद मैंने ये सब स्टार्ट किया तो मैं लोगों को बताता था कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। आई एम सॉरी कि शुरू में झूठ बोल के भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ा। तो लोग पूछते थे कैसे, तो मैं उनको ब्रेल का जो सारा सिस्टम है उसको दिखाता था। और ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली बसेस में इसलिए करता था, लोग पूछते थे तुम क्या करते हो, तो मैं कहता था मेरा कोचिंग है, मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ और देखो ना, 10 आएंगे तो 2 एडमिशन लेंगे, ऐसा मैं मानता था। और परिणाम यही हुआ कि मैं हर आने वाले को ये कहता था कि आप 1 महीना पढ़िए, अच्छा लगे तो फीस दे देना, नहीं तो उसके बाद आना बंद कर देना। मैं आपका ना एड्रेस जानना चाहता हूँ, ना आपसे फॉर्म भरवाना चाहता हूँ। और स्थिति यहाँ तक अच्छी हो गई कि
मेरे पास 400 स्टूडेंट्स तक ने 6-6 महीने के गैप पर रजिस्ट्रेशन करा के भी पढ़ा है। तो ये लाइफ स्टाइल है जिसमें वैसा वाला झूठ जो किसी को नुकसान ना करता और आपको रास्ता दिखा दे, उसको करने में मुझे लगता है कि कोई भी गलत नहीं है। अहिंसा परमो धर्म है ना, तो सत्य वो जिसके अंदर किसी की क्षति ना होती हो और आप स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। आप ऑप्टिमिस्टिक हो, ये मेरा लाइफस्टाइल तब तक रहा। ये इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ हमारे साथ के भारत भूषण का भी कमेंट आ रहा है कि आई ऑलवेज रिमेम्बर एंड चेरिश मोमेंट्स स्पेंट इन दैट वन रूम प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। तो ये मेरा भी उसी समय था जब हम वो एक रूम में बेंच में बैठते थे और क्लासेस चलती थी। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब जो कोई लेट आता था बड़ा डर डर के आता था, उसके पैरों की आवाज से सर को पता चल जाता था कि कौन आया, भी लेट पहुंचा है। that kind of alertness, that kind of that was amazing. And अभी थोड़ा सा मैं इसीलिए इससे पहले कि हम लोग कहें कि जैसे आपका एजुकेशन का फोकस आपने बताया, हम लोगों ने भी देखा चरित्र में और एथिक्स पे। तो सीमा जी, आप जैसे अभी एजुकेशन फील्ड में हैं, now you're running an institute where you have the opportunity to disseminate importance of character and ethics which you have learned. तो आप जो यहाँ सीखा आपने और जिंदगी का आपने, जैसे आपको मैंने देखा कि आप और भी काफी सोशल कॉज में रहे हैं, तो थोड़ा कुछ आप एग्जाम्पल बताएं और किस प्रकार से आप कर रही हैं, शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इसलिए चुना कि मैं सर के एक स्टूडेंट रही हूँ और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं सर के साथ इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर मैंने सर से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, पहले तो यही कि सर का डेडिकेशन में देखती थी कि सर किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। फैमिली एटमॉस्फेयर हमें देते थे, अपनापन जो सर से सीखा कि हर बच्चे को सर ने अपना बच्चा समझा। तो वही चीज़ें मैं भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि सर हर बच्चा अटैच हो जाए। आज भी सर से सोचिए 50,000 स्टूडेंट्स को सर पढ़ा चुके हैं और हर बच्चा सर से कनेक्टेड है और सर उसको जानते हैं। इवन अभी मैं काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स के बाद सर से मिलने गई, तो सर ने उतने ही अपनेपन से, उतने ही प्यार से मुझसे बातचीत करी। तो सर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम नहीं कह सकते, जैसे टाइम से क्लास। सर ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। मैं बहुत ही इस तरह की लड़की थी कि खेल कूद में रहना, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं, लेकिन जब से सर के टच में आई तो मैंने बहुत टाइम की वैल्यू समझी, टाइम मैनेजमेंट करा, गोल सेट करे, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स। सर ने बहुत चीज़ें सिखाई जो मैंने ये सब करा उसको मैं क्योंकि अगर मैं खुद फॉलो नहीं करूँगी तो मैं किसी और को कैसे कह सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें सर से सीखी। फिर सबसे पहले कि अटेंडेंस या स्टूडेंट के साथ जो हमारी हेल्प है, जैसे कभी भी हमें लगता था, ऐसा लगता था सर के साथ या मैम के साथ जाके हम अपनी बात डिस्कस कर लेते थे। पानी पीना है तो हम ऊपर चले जाते थे, ऐसा नहीं है। एक फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल सही कह रहे हो वो आप। हमें, वो बच्चे वहीं पे रह जाते थे, बच्चे जो हाँ गांव जी, से पूरे आते थे वहीं पे सो जाते थे कि उधर ही कहीं जाने का नहीं, उधर ही सो जाते थे। तो ये कमिटमेंट और डिवोशन सर से जो मैंने सीखा, पैशनेट टीचर की कैसे पैशन है, कैसे हेल्प करते थे सर। अगर सर ने हमसे 11 महीने की फीस भी ले ली तो उससे ज़्यादा हमें दिया है। कभी हमें प्राइज दे दिया, कभी कहीं और। इवन सर के साथ देखा जाए तो सर ने एक हमारा जो ट्रस्टिंग लर्निंग है, जो सर ने हमें ट्रस्ट सिखाया कि लर्निंग पे या टीचर पे फेथ करना, कोचिंग देना का मतलब कोच जो मेंटोर है हमारा, हर चीज़ में हमें गाइड करना, वो सब चीज़ें मैंने सर से काफ़ी सीखी और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करती हूँ। स्टूडेंट से अटैचमेंट भी है, हर बच्चे की इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करती हूँ। पूरा तो मैं ये नहीं कह रही कि 100% सर को फॉलो कर पाती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरा भाग्य है कि अगर मैं 5% भी सर को फॉलो कर पाऊँ। इसीलिए जितना टाइम मिलता है वो एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग, क्योंकि एक टीचर हमेशा लर्निंग स्टेज में रहता है, तो हमेशा सीखने के उसमें रहते हैं। बच्चे को भी अगर हम ये 2 चीज़ मान सकते हैं कि हम सबसे पहले बात करें कैरेक्टर और एथिक्स की, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट में अगर ये चीज़ें हमने डाल दी तो वो स्टूडेंट का ही बेनिफिट नहीं है, उसके साथ-साथ उसकी फैमिली, पूरा आप ये मान के उसकी सोसाइटी, पूरा देश। मतलब सर ने इतने सारे चीज़ों को सिखाया है कि पूरे देश के लिए हम सोच सकते हैं। आप एग्ज़ाम्पल हैं, संजय भैया एग्ज़ाम्पल हैं, कल्पना है, काफ़ी लोग एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके,
जो सर के आज बहुत सारे काम कर रहे हैं, देश के लिए भी कर रहे हैं, तो वो चीजें हम कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बने ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएगा। जो सर का स्टूडेंट है उसके अंदर ये गर्व से कह सकते हैं कि हम सर के स्टूडेंट और हमने सर से ये सब चीजें सीखी है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये 100% श्योर है कि अगर एक घर का बच्चे ने सर को ज्वाइन करा तो उसकी पूरी फैमिली आती है। मतलब मैंने ज्वाइन किया, मेरे भाई भी आया, मैंने उसको बोला, जो मेरे कजन है वो भी, क्योंकि हम जानते हैं हम उसी को रेफर कर सकते हैं जिनसे हम अटैच हैं या जो हमें उतनी चीजें देते हैं। तो सर की हर चीज को अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें। सर की एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, सर को याद है या नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। 92 में मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे और मैं काफी दिन कोचिंग में नहीं आई थी सर के उसमें। तो कोई टेस्ट था हमारा, एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जैसे सर कराते रहते थे टेस्ट। सर ने, मैं जब पहुंची तो सर ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हमारे यहाँ डेथ हो गई थी। सर ने उस टेस्ट को पोस्टपोन करा मेरे लिए, और उसके बावजूद मैंने इतनी बदतमीजी करी कि मैंने वो टेस्ट नहीं दिया। जब वो टेस्ट मैंने नहीं दिया तो सर बहुत नाराज हुए, और मैंने सर से प्रॉमिस किया कि सर आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद मैंने सर को हमेशा कभी निराश नहीं करा और हमेशा उन चीजों को करने की कोशिश करी। तो सर की नाराजगी में भी हमारे ऊपर, जो सर कभी गुस्सा होकर भी बोलते थे, वो भी बहुत प्यार से ऐसे बोलते थे, नाराज नहीं है, हमें फील होता था, लेकिन सर ने कभी भी हमें ऐसे नहीं किया। मतलब आप सोचो, एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने अपने टेस्ट की डेट पोस्टपोन करी और उस स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया, तो ये गलती किसकी थी? स्टूडेंट की। और सर ने कुछ नहीं, बहुत आराम से समझाया और वो चीज समझ में आ गई। तो ये अपनापन और ये डेडिकेशन, फैमिली एटमॉस्फेयर, ये रोजमेरी से ही सीखा है सर। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ इसी तरह का रिलेशन रखूं, और कुछ परसेंट ऐसी मैं कर भी पाती हूँ, एक पर्सनल रिलेशन बच्चों से बना पाती हूँ। ये सर का ही है सब कुछ। ये असल में जो आप बाकी तो बताइए सब बातें, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पर्सनल, जैसे हम आर्मी में है, कल्पना आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये। और अभी मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अपर्णा शर्मा, जो ज्वाइन करने की काफी देर से कोशिश कर रहे थे, बट somehow due to technical reasons she was not able to join in. And I think you have been listening to the whole conversation, Aparna. I suppose Yes, you have yes, been sir. listening. So she is सबसे working पहले in सबको प्रणाम. Am I audible, sir? yes. Sure, yes. Okay. So she is working. Dr. Aparna Sharma is working in Amity Institute of English Studies and Research, part of Amity University, Noida, as assistant professor. She is doctorate in history, MA in English, and MBA in HR. She has 17 years of experience, and she has 2 books and 15 research papers to her credit. Fond of writing poetry in Hindi and English, Samay Chakra was her first work on poetry. उम्मीद है आज कुछ सुनने को शायद मौका मिल जाए थोड़ा बहुत। वैसे सर से भी सुनने की हम कहीं रिक्वेस्ट करेंगे बीच में। और लाइक सिंस यू हैव बीन लिसनिंग, सर ने जो बताया है और जो एक मैसेज जा रहा है कि कैरेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द एजुकेशन, एथिक्स एंड कैरेक्टर, तो वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग टू व्हाट सीमा हैज सेड? एंड आपने तो बुक भी लिखी है एथिक्स के ऊपर अभी। Sir, I was listening to the discussion and I came up with the perspective that we can say that both ethics and character, they are directly proportional to each other. If a person Right. is ethical, definitely the person will be characterful. And if the person is bearing a good character, he cannot violate the ethical norms of the society. So both the things, they are simultaneously parallelly going together. We are actually confusing. These are the ethics, these are the relative ethics. These days, because there is a philosophy which is called as relative ethics. Relative ethics means if I feel like this is beneficial for me, I will do it. And if it is not beneficial for somebody else, so that is their business, but because it is beneficial for me, so I am doing it. Now, practically, or the materialistic people in this rat race, they are trying to come up with this perspective. This is a new trend, and ethics are, are certain things which are in backdrop. But what I feel, when we talk about now coming up true character towards ethics. Now, character is a very wide term which we generally come up with a very narrow understanding.
say for example, I mean, the people they used to give loose comments, इसका character अच्छा नहीं है, उसका character अच्छा नहीं है. First of all, they should define, they should understand what actually character is. Is character something related to the physical being of the person, physical involvement of the person here and there, or something beyond that? Will you call a person who is smoking and drinking a characterful person, or the person who is doing doing these things plus keeping a good heart and at least somewhere or the other doing good towards the society? As in, this reminds me of a quote from one of the friends. He said कि मैम सभी शराब पीने वाले आदमी गंदे नहीं होते. मैंने कहा यस, बिल्कुल नहीं होते. तो फिर पीनी ही क्यों है? अगर आप अच्छे हैं तो पीजिए ही मत. So anyways, that is a different diversion of the topic, so I'm not going into that aspect. But as you said that yes, character is something very strong. And say for example, if I have a firm determination, I have to do it. Anyhow, I have to help this fellow. Anyhow, I have to be stick to my norms. Even that is character. If I'm honest, that is character. If I'm honest with my students, that is character. If I'm candid with my fellow beings, with my friends, if I'm warm and compassionate, that is also a type of character. Characteristics of character, what I feel. I mean, this is what totally coming from my heart, and definitely I agree, or rather I can say I have a confidence that sir will be agreeing to it, because I have a very good, or rather very different type of relationship with sir, where I used to say everybody, मेरठ में तो मेरे कई सारे घर हैं. तो बोले अच्छा हाँ मैम आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मेरठ में. मैंने कहा नहीं, रिलेटिव्स के अलावा भी मेरा एक और भी घर है. तो आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो बेगम बाग में जाइएगा, एंड रोजमेरी इंस्टीट्यूट, दैट इज लाइक माय होम. So what I mean to say that all these instilling all these ethics, that where one person can you can instill that much confidence in a person that he or she can rely on you 100%. Therefrom, slightly towards, or through ethical norms, we are building up a character, and that is what I have learned from those people. That is why I said at the initial stage that it is directly proportional to each other. If one end is missing, you cannot think of the another end. And if another end is missing, you cannot think of this one. So both the sides, they need to be taken into consideration parallelly, and they need to be journeyed on a parallel note. We cannot keep aside character, we cannot keep aside ethics. Now the point is that I think first of all let other people speak up. Then I will speak up. I like to speak up on why and how the deterioration is noted in both these fields, and what are certain remedies. How we can actually stop that degradation of life. What I. That is, I think, very, very important. Absolutely, very important to talk in the present scenario. Sir has also mentioned in the morning, he sent a message that how to stop the degradation in the society. In fact, the less and less focus is there. People are there for mass, people are there for valuables rather than values. So it's very important to talk. And I think we have with us Mrs. Kalpana Saxena, IPS officer, and she has a lot of, in this position, when you are leading men and you are commanding troops, it is very important for a leader to have the character as well as ethics. Then the people trust you, they follow you blindly. So, Kalpana, we'd like to listen to some examples and your views on this. नमस्कार सर, आपको और सभी दर्शकों को, सर को, सबको मेरा नमस्कार. और रियली जैसा सीमा ने कहा कि हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, और मैं आज अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि सर के साथ आज हम सफल होकर चढ़े हैं. जब सर के पास मैं आई थी तब हम
बस ये चाहते थे कि कुछ करना है कैरियर में, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। तो जैसे एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आए और एक किसी को पता नहीं, गुम है कि मुझे कहाँ जाना है, और ट्रेन आए और ले जाए और उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, ठीक उसी तरीके से सर ने हमें राह दी और हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। केवल उन्होंने डेस्टिनेशन पर ही नहीं पहुंचाया, सफल ही नहीं बनाया, सफलता के पीछे जो गुर हैं वो सारे सिखा दिए। और ये हमें जानना होगा कि कभी भी सफलता बिना कैरेक्टर के नहीं मिलती। यदि चरित्र है तो हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। सबसे पहली चीज, छोटी छोटी चीजें हमने सर से सीखी और वो हमने अपने जीवन में उतार ली। और अगर एक जगह पे चरित्र क्या होता है अगर देखना है, तो सारे गुण जितने हैं वो हम सर में देख सकते हैं, और सर में जो हैं वो हमने अपने अंदर उतारे और उनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। नंबर 1 इज, हर आदमी यहाँ रॉ आता है, अनुशासन के बारे में निबंध बहुत लिखता है, लेकिन अनुशासन होता क्या है, प्रैक्टिकली अनुशासन कैसे रखा जाता है, ये हमने सर से सीखा। और ना केवल स्टूडेंट लाइफ में हमें अनुशासन चाहिए, हमें थ्रू आउट द लाइफ अनुशासन चाहिए। जब तक हम अपने पर शासन नहीं करेंगे, अपने पर नियंत्रण नहीं करेंगे, और जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, ये अनुशासन है। और इस अनुशासन को ही पालकर हम आगे और आगे बढ़ते हैं किसी भी चीज में। चाहे आज हम फोर्स में हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई हमारी फैमिली है, सबके साथ हमें अनुशासन चाहिए। दूसरी चीज हमने सीखी और हम जो निभा रहे हैं वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी के मामले में अगर 6 बजे क्लास है सुबह के, या सुबह के 5 बजे क्लास है, चाहे बारिश हो, चाहे कोहरा हो, फॉग हो, कितने बादल गरज रहे हो, बिजली कड़क रही हो, अगर 5 बजे क्लास है तो 5 बजे क्लास है, सुबह के 5 बजे जाड़ों में। उसमें कई बार सोचते थे कि आज तो शायद क्लास नहीं लगेगी, तो वी वर रॉन्ग। अगर 5:01 पर हम पहुंचे तो सर हमारी पदचाप से पहचान लेते थे कि हम लेट हैं। वो नाम से बताते थे कि कल्पना यू आर लेट, आज देर कैसे हो गई, अभी आप 1 मिनट लेट हैं। तो हमें पंक्चुअलिटी उन्होंने हमारे को प्रैक्टिस में दी। और उसके बाद में हम ये सोचते थे कई बार कि सर गलत तो नहीं कहते, कि सर हमें लगता है कि सर के पास आईज हैं, सर हमें कैसे देख लेते हैं, सर कैसे हमें नाम से पुकार लेते हैं। तो बड़ा स्ट्रेंज लगता था, और कई बार मन में रात को बैठ के सोचते थे कि कुछ गड़बड़ है, सर कहते हैं और सर तो नाम से पुकार लेते हैं, कोई पीछे से कैसे पुकार सकता है कि मैं पीछे छुपी खड़ी हूँ और सर कहते हैं कि कल्पना आप 1 मिनट लेट हैं। तो पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के अलावा अगर डेडिकेशन टू वर्क, आप किसी भी काम में जो भी करें आपको फुल डेडिकेशन के साथ में, फुल सिंसियरिटी के साथ में करना होगा। यदि आप सिंसियर हैं, डेडिकेट हैं, तभी आप उस परीक्षा में जिसमें भी आप हैं वो सफल होंगे। परीक्षा केवल एक ही बार नहीं होती, केवल कैरियर के लिए नहीं होती, परीक्षा हर पल हमारे सामने होती है। और यदि आप अपना 100% दे रहे हैं उसमें, तभी आप उस परीक्षा को पास कर सकते हैं। वो हमारे कैरियर में, हमारी जिंदगी में हर चरण आती है, हर कदम पर आती है, जिसमें कि हमें सिंसियरली और डेडिकेट होकर काम करना होता है। इसके साथ में एक चीज है ऑनेस्टी। यदि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं, अपनी फैमिली के प्रति ईमानदार हैं, अपनी सोसाइटी के प्रति ईमानदार हैं, अपने देश के प्रति ईमानदार हैं, इस मानवता के प्रति ईमानदार हैं, अगर ईमानदार हैं तभी ये जग हमें मानव कहेगा, हमें याद करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब बातें केवल किताबों में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। जो लोग ऑनेस्टी निभाते हैं, जो लोग ट्रांसपेरेंसी निभाते हैं हर चीज में, अपने कैरेक्टर में, अपने वर्क में, अपने बिहेवियर में, तो वो दिखती है। जब ऑनेस्टी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो दूसरा व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करेगा। और इन सारे गुणों को मिलके जो मैंने बताई, जो सामने व्यक्ति है वो एक चीज आती है सामने, ट्रस्ट। और ट्रस्ट के बिना कुछ नहीं है। अगर आप पर ट्रस्ट है तो आप सफल हैं। हमें ट्रस्ट कहाँ से मिलता है? हमें अपने, अगर मैं आज पुलिस में हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर मुझ पर ट्रस्ट करे, सोसाइटी मुझ पर ट्रस्ट करे, पब्लिक क्या मुझ पर ट्रस्ट करती है,
क्या मेरा स्टाफ, मेरा जूनियर्स, मेरे कलीग्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? क्या मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है? ये सब चीजें जब आती हैं, जबकि हमने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे बैलेंस के साथ में हमने जिसको जो चाहिए, मेरी फैमिली को जितना मेरा टाइम चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट को जितना मेरा टाइम चाहिए, वो मेरे को जितना टाइम चाहिए, वो सब हमने बैलेंस बनाकर उसके साथ जस्टिस किया हो, तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस आती है। और ये ट्रस्ट वर्दीनेस ही पर्सनालिटी की वो चीज है कि उस ट्रस्ट के ऊपर ही हम किसी पर कोई विश्वास करते हैं। जैसे सीमा ने कहा कि मैं किसी को भी कह देती हूँ आंख बंद करके कि जाओ रोजमेरी में पढ़ने जाओ, ये है ट्रस्ट। मेरे पास में मेरे जितने जवान आते थे जो कहते थे कि हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते सर, हम भी उन्हें आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं, तो मैं ये कहती थी कि एक काम करो, तो वो कहते थे हम एनसीआर में आना चाहते हैं, हम दिल्ली में आके इनको फलान इंस्टीट्यूट से कराना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, तुम पहले एक बार जाओ, मेरठ चले जाओ, मेरठ में तुम्हें पता चल जाएगा कि गाड़ी में चढ़ना कैसे है, बस फिर तुम्हें डेस्टिनेशन अपने आप मिल जाएगा, जब एक बार गाड़ी में बैठ जाओगे गाड़ी चल पड़ेगी। तो वो लोग जाकर सर के पास जाते थे। तो ये ट्रस्ट मैंने कमाया है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने पुलिस कैरियर में। यदि मैंने कमाया है तो मैंने ये ट्रस्ट कमाया है अपने डिपार्टमेंट का, अपने सीनियर्स का, अपने ऑफिसर्स का, अपने कलीग्स का, अपने जूनियर्स का और पब्लिक का। और उसके साथ में एक और चीज है, वो है एम्पैथी, ट्रस्टवर्दीनेस। अगर आप हमदर्दी रखते हैं पब्लिक के साथ में, हमदर्दी रखते हैं औरों के साथ में, आप दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, तभी आप, खासतौर से पुलिस के जीवन में, तो तभी सफल हो सकेंगे। आप अगर अपनी पब्लिक को आप सुन रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, एक होता है, और आप आउटपुट दे रहे हैं, तो लोग आप में विश्वास करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मैंने अपने जीवन में अनुभव की हैं, और इन गुणों का मुझे बहुत लाभ मिला है। और मैं इसी वजह से मेरे में अंदर साहस है, मैं जो अपने अंदर पाती हूँ कि बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर हो, कहीं कितनी बड़ी समस्या हो, कोई दंगा हो रहा हो, कैसी भी कोई समस्या हो, यदि मैं वहां सफल हो पाती हूँ बिना बहुत सारी फोर्स के, बिना बहुत सारा कुछ लिए अपने साथ में, अगर मैं अकेली अपने चेहरे पर या अपने नाम से ही मैं अगर कहीं सफल हो जाती हूँ, तो शायद उस पब्लिक का मेरे में ट्रस्ट है कि मुझ पर वो लोग विश्वास करते हैं, और जो बात मैं कहती हूँ वो हो जाती है। उसके लिए बहुत फोर्स की, बहुत सारा अस्त्र शस्त्र की, बहुत सारा इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो मेरे पास सर का बहुत उपकार है, और सर की गाइडलाइंस पर मैं आज अपने जीवन में चल रही हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने कैरियर में और अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में और सोसाइटी में सफल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, जो आपने बताई बातें। इनफैक्ट जो ऑनेस्टी, ट्रस्ट, एम्पैथी, खास तौर से जो लाइन है आपकी और हमारी, हालांकि ये जिंदगी में हर जगह कामयाब है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, किसी भी ऑफिस में हो, कहीं भी हो, it is very very important. But when, like in army or in police, when you are there, when you are dealing with people, when you're dealing with public, and when you're commanding men, and when you are commanding them under stress, under tough conditions, then this trust factor comes, and they have faith in you, that they know that whatever plan you have made, it will succeed. You have thought of every angle, every details. You have gone into a lot of details, and you will be standing with them. And viewers, let me tell you that you can Google Kalpana Saxena IPS. Then you'll find the kind of strong lady she has. She has led by example. She has led by, what she mentioned, because the trust her men have in her, and the public knows if she says something, she means it. That is what all of you can Google it. In fact, sir may like to ask something from her, then it's a different thing altogether, sir. Before I go to Sanjay Sharma. देखिए, ये आप सभी बच्चे, सभी फैमिली मेंबर्स, जिस दिन आपने अपने साथ जोड़ा कि विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, हैं वही मनुष्य जो मनुष्यता के लिए मरे। तो बच्चों, जब ये एविडेंट है
कि जो वन हु इज बॉर्न विल डाई, मतलब वो पंच तत्वों में लीन होगा, और आत्मा जो अमर है उसी आत्मा को महान आत्मा और परमात्मा में हम क्यों परिणित नहीं कर सकते? कौन सा सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता, कौन सी कामनेस हमें नहीं मिलती, कौन सा कंटेंटमेंट हमें नहीं मिलता जो उन लोगों को मिल रहा है जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो डॉन्स हैं, जो चाइना कर रहा है या वो। मुझे लगता है कि वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी आर डूइंग, और इसीलिए हमारी फैमिलीज में भी सब कुछ, सारे बच्चों के बच्चे यानी माय ग्रैंड चिल्ड्रन, they are well disciplined, they are well satisfied with what they have. So let us see what Sanjay Sharma reminds us all about through his experiences. Good evening, sir. Good evening, everybody. First of all, I will just give a brief recollection of my days in Rosemary. As everybody is saying, I mean the senior ones are saying, we remember the one-room center which sir was running and which we first joined. And before that, I'll go back to my school days. पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे समय में एजुकेशन में डिटेरियोरेशन होना काफ़ी हद तक शुरू हो गया था। फॉर एग्जांपल, मैंने 9th में एडमिशन लिया था GIC में, जहाँ से यूपी बोर्ड के टॉपर्स निकला करते थे। बट आई वॉज अपॉल्ड टू सी कि वहाँ टीचर्स उस समय प्राइवेट ट्यूशंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, क्लास में कोई एजुकेशन नहीं होती थी। तो इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज यू विल डू इट ऑन योर ओन। तो एक शिक्षा में उसी समय 70s में ही काफ़ी डिटेरियोरेशन आना शुरू हो गया था। उसके बाद किसी दोस्त के थ्रू मैं सर के पास आया। सर के पास इनफैक्ट पहले मेरे कज़न है, मुझसे छोटी बहन, मैंने उसको एडमिट कराया था। उसके बाद मुझे लगा कि सर के यहाँ मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो मैंने ज्वाइन किया। तो जैसा भी बाकी सब ने बताया कि सर के यहाँ पे जो हमने सबसे ज़्यादा सीखा वो था सेल्फ डिसिप्लिन। पंक्चुअलिटी तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं इंस्टिल कर पाया अपने अंदर, लेकिन हाँ डिसिप्लिन जरूर है, क्योंकि सर के यहाँ आने से पहले मैं बड़ा शॉर्टकट्स में यकीन करने वाला था और स्लो एंड स्टडी में मेरा कोई बिलीफ नहीं था। तो मैं खरगोश को फॉलो करता था कछुए की बजाय। लेकिन सर ने वो डांट कर पीछे पढ़ कर थोड़ा डिसिप्लिन मेरे अंदर लाया, और मेरे जितने बहाने होते थे कि मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता या मैं कल करूँगा, वो उन्होंने एक एक करके दूर कर दिए। तो अल्टीमेटली सर की स्ट्रेटेजी जो मेरे को बाद में समझ आई वो ये होती थी कि जब मैं एक इंग्लिश की तैयारी मेरी हो गई तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, कल से तू सबको मैथ्स पढ़ाएगा। या जब मेरे को उनको लगता था कि अब ये बैच में ठीक कर रहा है तो मेरे को किसी जूनियर बैच के साथ वो लगा देते थे कि अब तुम इनकी मेंटरिंग करो। तो इस तरह से जो मेरी कमियां थी सर ने उनको धीरे धीरे दूर किया। अब मैंने वो आगे पास ऑन किया कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कल्पना या जनरल संजय की तरह मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं बहुत बड़ी कमांड्स को या बहुत बड़े सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे पाऊँ। बट अपने ऑफिस में जूनियर्स या सबॉर्डिनेट्स के साथ ये मौका जरूर मिलता है कि मैं उनके बहाने जरूर छीन लेता हूँ। जब वो कहते हैं कि आज ये नहीं हो सकता तो मैं कहता हूँ चलो मिलके करते हैं, अभी करते हैं और ऐसा करते हैं। तो वो काफ़ी हद तक वो बातें आ गई हैं। अब एजुकेशन में एथिक्स के बारे में, मैं चूंकि एजुकेशन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं हूँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक तो एथिक्स मेरा मानना है कि हम उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि एजुकेशन में होगा या जनरल लाइफ में या क्या। इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। कैरेक्टर के बारे में अपर्णा ने बहुत अच्छे से भी समझाया था, और उनकी एक दो बातें मेरे को और बढ़ानी थी कि जैसे उन्होंने बताया कि एथिक्स भी हैं, रिलेटिव होते हैं। तो आई ऑल्सो फील कि एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें रिलेटिव विद द टाइम एंड सोसाइटी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, अगर हम इनके पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि मिडिल एजेस में जब इन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू किया तो दे स्टार्टेड एज मर्सेनरीज, मराउडर्स। लूटपाट करके इन्होंने दूसरी सिविलाइजेशन को खत्म किया और वहाँ पर कॉलोनीज बनाई। एंड देन दे बिकेम इवेंजलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, रिफॉर्मर्स। फिर उन्होंने अपना एक ऑप्शन दिया। सो व्हेन द गोइंग इज गुड एवरीबडी क्लेम्स टू बी वेरी वेल कल्चर्ड, सिविलाइज्ड एंड सो ऑन। लेकिन जब कोई कैलेमिटी आती है या जब कोई हार्डशिप आती है, देन देयर ट्रू कैरेक्टर इज नोन। वर्ल्ड वॉर में
या ऐसे किसी मौके पर, या 9/11 के बाद सोसाइटी का एकदम चेंज हो जाना. जो यूएस या यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, they used to be very liberal and very inclusive. They became self-preservation first. Similarly, more recently we have seen in this COVID situation, when countries are shutting their doors to outsiders. Within our own country, the states are shutting doors to their own individuals, refusing to take them in. Within our societies, RWA is acting and telling people not to come back to their homes because they might bring some infection. So all these things exposes the so-called moral values or the ethical level of people. So what ethics do, or what such value system do, is make you strong from inside. There are people who crumble before pressure, as we have seen that some people have committed suicides. So these are the things which are taken care of by those ethical values which are nurtured in you at some stage of your life, in your student life mostly, or which you receive as sanskar from here and there, and which you can continue to receive throughout your life. So that's what I see ethics doing. So मेरे को लगता है कि हाँ, एथिक्स के बिना एजुकेशन इनकम्प्लीट है. जैसे आजकल फिर वही दौर है कि हमको पढ़ाया जाता है कि आपने ये पेपर क्रैक करना है. सो आइडिया इज कि आपने इस चीज को अचीव करना है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लर्न करेंगे उस सब्जेक्ट को. somehow you have to manage, get your marks, be in the top 30 or so and so, be in that institution. So that is an education without ethics or without moorings. So that we should be avoiding. That's what I feel. So in fact, I'll read out a couple of good comments also which are coming. Santosh Kumar Anand says, teacher is like a potter who gives shape to the life of students. Professor Jagdish Luthra is one of those successful teachers who gave a direction to the life of students and made them successful in their life. A salute to you, sir. Due to bad net connectivity, I'm not able to listen to these personalities live, but definitely I'm going to listen the recorded conversation. Sohi sir has always been an inspiration for me, and I think after listening to all others, I'm going to be a fan of all. He's in Leh, that's why probably signals are bad. And there's a message from Manipur. It must be a proud thing to see his students standing up and still remembering all his efforts, which is fruitful now. There are many comments coming, sir, but what you say is what we say. Having heard your students and how much satisfaction you get when you see your students follow the path of morality, values, honesty, ethics, character. I mean, they have totally imbibed these qualities, and probably that is why you can say they are good leaders. Success, it comes automatically, but one is good leader, one is successful. Success comes naturally, but if you are a good leader. So they have all emerged as good leaders. So what, I mean, would you like to share some feelings? आज जरा देख के कुछ ऐसा. बच्चों, we should always believe in only one thing, and that is by two poems I am saying, and then I would like to listen. You all like Aparna and all. That is, first of all, I always tell my students, my children, my family members, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो. ये स्पिरिट सब में होनी चाहिए. तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन. These are the feelings. जब बच्चों में हर बार किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर मुझे चांस मिलता है, तो I try to induce these sentiments, these emotions. These are my likings and this is my taste. The system has given me commitment, and commitment increases the level of energy. Energy increases the level of action. Action increases the level of success.
and success increases the level of commitment. What is commitment? To continue journey positively, creatively, constructively, as success is a journey, not a destination. We all have enjoyed, we all have learned, we are all inspired by each other's expressions. This is what every time is expected. We should share with our family members. We should be very friendly and cordial to our children, and there should be no gap between children, parents, and grandparents. Then and only then, Vishwa Kutambakam, the whole world, the whole universe is one की फीलिंग आती है, आएगी, और वही किसी भी जीवन में स्वर्ग पाने का सर्वोत्तम तरीका. So I would like to say, and I would like others also to react as time is about to over. So in one or two, everybody should give their final comments. What next do you expect from me? What I expected, I have got from you all. So now, your expectations should be satisfied. This is organized by General Sir, Sanjay Sir, my 3 daughters, and I'm happy that those who must be viewing us, तो listening संजय us. सर का भी एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे. अभी तक हाँ, संजय sure. सोई सर का कोई एक्सपीरियंस हमने नहीं लिया, तो अगर अच्छा हो, अगर संजय सोई सर भी थोड़ा बताएं. हाँ संजय सर, Yes, तो- अपने इसके साथ वाइंड अप करना, ठीक है? हाँ, तो एक्चुअली जर्नी तो बहुत लंबी रही है, 36.5 years की, हर तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं. तो हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ में जब मैं ब्रिगेड कमांडर था, तो छत्तीसगढ़ में नक्सल इलाके में ब्रिगेड लेके जाना था. जब हम वहां पर लेकर गए, तो आर्मी फर्स्ट टाइम वी वेंट टू दैट एरिया, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ lack of trust in the local population. They were fearful. They thought we have come for operation, though we had not gone for operations. And there was a total panic in the local population. And then the Naxals started taking advantage of that, and they started putting up posters, and they organized bunds for 10 days. That they cut trees, stopped all the traffic, closed all the markets, rallies, posters, everything was there. Indian Army go back. Indian Army is part of Operation Green Hunt, which is there in the Andhra Pradesh against Naxals. So those kinds of things were happening. Then we started communicating with people. We started talking to people. We are not here for operation. We are not against common man. We are not against general public. We are here to do our training. So then we called them, interacted with them. Then we started giving them medical help. I started training them. I said, I'll not सिफारिश किसी की नहीं करूँगा, but I'll try and empower you to join army or police, so that then you know. Because what happened, that area is tribal area. People don't even know what all they must study, what all they must prepare. That itself was a great thing. They were physically very fit, very good people, excellent people. Like I'm from Naga regiment, they are also tribal, wonderful people from north. So then when we left, this was the initial thing. And when we left after 3 months, they had tears in their eyes. कि क्यों जा रहे हैं आप? नम आंखों से किया बिना फौज को. And that's the kind of thing. They organize rallies, they organize meetings, and we went to their houses. किसी गरीब के घर में जाके खाना खा लिया. I mean, that is the kind of thing. Within 3 months, we could change the psyche of the people from total negativity to positivity. So, because after all, वो अपने देश के बंदे, same thing happened in Kashmir. In fact, wherever I was, ultimately, I was never against common people. We were only against focused against military. In fact, and the common people were so friendly. They, in fact, today also I get calls from them. Girls राखी बांध रही हैं. रक्षाबंधन का दिन था, वो टीका तैयार करके रखा हुआ था, रक्षा तैयार करके रखी हुई. That's the kind of thing which I can never forget. Above religion, above caste color.
ये छोटे छोटे कई एग्जाम्पल हैं जो कि ऑपरेशनली मैं ज्यादा नहीं करूँ, पर वैसे भी जो ह्यूमन टच वाले एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द थिंग्स व्हिच, और आई थिंक कल्पना जी कुछ आपका और अपर्णा कुछ आपका भी कुछ बता सकते हैं लास्ट ऑडियो से, एनीथिंग। कल्पना मैम पहले आप बोलो। सॉरी मैं क्वेश्चन सुन नहीं सकी, थोड़ा संजय सर का आवाज नहीं आ रही थी। एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे कहीं पे किस प्रकार की एथिक्स हाँ, वगैरह आप करते हैं? हाँ, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। चाहे चीजें पुरानी हो, लेकिन हमें ये सेटिस्फेक्शन देते हैं ये एक्सपीरियंसेस कि हाँ हम सही राह पे चल रहे हैं, हम ठीक हैं, एक आत्मसंतोष मिलता है। तो एक बार मैं मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे हो रहे थे और उन दंगों में मैं लीड कर रही थी जिले को। और उस समय आपको मालूम होगा, याद होगा कि मुजफ्फरनगर के देहातों में, गांव-गांव में दंगे भड़क गए थे और हम लोग 5-6 दिन और रात, हम 24 घंटे वी वर ऑन टोज, हम लोग ना बैठे, ना खाए, ना पिए, ना कुछ। तो मेरे साथ में पीएसी मुझे मिलती थी, एक दिन में एक कंपनी पीएसी और रात को एक कंपनी सीआरपीएफ। तो पीएसी दिन में थी, जब शाम का टाइम हुआ तो वो पीएसी वहां थी, 6 बटालियन मेरठ की थी, जहां मैं पहले जॉब कर चुकी हूँ। मैं उन लोगों के साथ रह चुकी हूँ एज डिप्टी कमांडेंट। तो जब शाम को उनका रिलीव होने का टाइम आया और दूसरी कंपनी आ गई, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ। तो बोले नहीं साहब, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे, तुम्हारे 12 आवर पूरे हो गए, जाओ घर, वहां जाके वापस जाके खाना खाओ। बोले नहीं सर, हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा दंगे में, ऐसे समय में हम आपको नहीं छोड़ सकते। मेरे बहुत कहने पे मैंने कहा इट्स माय ऑर्डर और आपको जाना है वापस। तो बोले कि ठीक है सर, हम पीछे से देखेंगे, लेकिन हम आपको इस दंगे में, इस बीच में नहीं छोड़ सकते। मेरे पास उस समय 2 डबल कंपनी हो गई। तो मैंने कहा तुम्हें खाना खाना है, कहाँ खाओगे? बोले सब जहाँ आप खाएंगे तो हम खा लेंगे, आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो ये फ्रेटर्निटी मुझे अपने स्टाफ की मिली। तो मुझे पहली बार पता चला कि मैंने जो कुछ किया 6 में, तो उसका रिवार्ड मुझे यहाँ मिला। इतना नहीं, इसके अलावा कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती थी तो मैं बिना फोर्स लिए, लोग इंतजार करते हैं कि फोर्स आए तब पहुंचे। मुजफ्फरनगर में मैं सीओ थी उस समय, मैं डिप्टी एसपी सर्किल ऑफिसर। तो तितावी एक वहां पर थाना है, वहां का एक गांव है कि जहां पर केवल ट्राइब्स रहती हैं। वहां पुलिस के खिलाफ कोई दंगा हो गया और रात में 3 बजे वहां पर वो ट्राइब, पूरा गांव मशाले लेकर पुलिस के खिलाफ दौड़ लिए, पुलिस का थाना जलाने के लिए। मुझे रात के 2 बजे वायरलेस पर सूचना मिली, मैं केवल अपना ड्राइवर गनर लेकर पहुंच गई, वायरलेस पर सबको बता के कि पहुंचो, लेकिन कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं पहुंच गई। वहां पहुंची तो सब लोगों ने कहा मुझे फोन पे और वायरलेस पे कि आप मत आइए, ये लोग मशाले लेके चले हैं, एक हाथ में इनके मशाल है, एक हाथ में तलवार है और ये लोग बिल्कुल मारने के लिए उतारू हैं और ये थाना जला देंगे, आपको मार देंगे, सबको मार देंगे, आप मत आइए। मैंने कहा ठीक है, अब गाड़ी निकाल ली तो मैं वापस तो होने की नहीं हूँ। मैं वहां पहुंची हूँ और पहुंचते ही सबने कहा सीओ साहब आ गई, सीओ साहब आ गई। और उन्होंने, इतने हजारों के लोग, मशाले जली हुई थी, सबने मशाले नीचे कर ली, तलवार अपनी वापस म्यान में डाल ली, उनके पास तलवारें तक थी। और उन्होंने फिर अपनी सारी समस्या बताई, मैंने सॉल्व आउट करी। तो ये एक नहीं, मेरे ऐसे बहुत जगह हुआ, बहुत जगह इस तरीके से लोगों का मेरे पे ट्रस्ट, वही यहाँ पे कैरेक्टर ही मेन आता है कि लोगों में मेरे में ट्रस्ट था, मेरे कामों से, मेरे ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, इन सब से, तो वो दूर तक उसकी महक जाती है। ऐसा एक जगह हुआ इसी तरीके से, तीतरो सहारनपुर में एक गांव है, वहां पे सारे संगठन इकट्ठे होके पुलिस के खिलाफ आ गए और लोगों ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मैं 2 घंटे का सिटी से सफर तय करके तीतरो पहुंची और जैसे ही मैं पहुंची तो वो जो संगठन थे वो इस तरीके के कॉमर्शियल संगठन थे। मेरा नाम देखते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे, उन्होंने उन सारे संगठनों को वहां से भगा दिया कि तुम सब भाग जाओ, अब हमारी सीओ साहब आ गई हैं, हमारी प्रॉब्लम्स वो अपने आप सॉल्व कर देंगी। तो दिस वाज ट्रस्ट जो मैंने कमाया है। और बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग मिल जाते हैं, जब कभी कहीं ट्रेन में, कहीं और,
कि जो बताते हैं कि आपने हमारी इस तरह से वहां मदद करी थी। कोई छोटा सा, कोई किसी के लिए वो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे कि कोई बूढ़ी आई, वो बार बार आती है, बार बार आती है, तब मैं कहती हूँ अपने सबॉर्डिनेट से कि भाई इनकी समस्या क्यों नहीं सॉल्व करते हो? सर ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही घूमती रहती है थाने थाने। अच्छा ठीक है, अब हमने उसकी प्रॉब्लम सुनी, प्रॉब्लम समझ में आई कि उसके बेटों ने सारी उसकी जमीन हड़प ली और उसके बेटे ने उसको बेघर कर दिया। हमने पर्सनली जाके उसके बेटों से उसकी जमीन उसके नाम में वापस करवाई, उनके बेटों को जो चार्ज करना था वो किया और उसको उसकी जमीन वापस दिला के वो खुश। तो इस तरीके से लोगों को, बहुत सारे लोगों से इस तरीके की चीजें मिलती हैं। मैं देहरादून में विकास नगर में थी, रात के 3 बजे विकास नगर से देहरादून लौट रही थी। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो एक गाड़ी अकेली खड़ी थी, उन दिनों मारुति 800 हुआ करती थी, तो उसको देख के मैं रुक गई, जबकि उस रोड पे, विकासनगर रोड पे ट्रक चला करते थे, लेकिन उस गाड़ी को देख के मैं रुकी तो वहां पे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, वाइफ और उनके 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई एक गोद में था और एक 3 साल का बच्चा था, वो खड़े थे। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले जी हमारी गाड़ी खराब हो गई और ठीक नहीं हो रही, और वो बीच रास्ते में थे जंगल के। मैंने तुरंत एक ट्रक रोका और उनकी गाड़ी को टो कराया और उनके बच्चों को और पूरी फैमिली को अपनी गाड़ी में बैठाया और उनके घर तक छोड़ के आई। मुझे नहीं याद, वो फिर 10 साल बाद ये कभी मिले और उन्होंने कहा आप वही हैं जिन्होंने हमें, हमारे साथ ये हमारी मदद करी थी। तो इस तरीके से जब लोगों से रिवार्ड मिलता है तो वो बहुत संतोष देता है और लगता है कि हम सही काम पर हैं। और अगर ईश्वर ने हमें ये ड्यूटी दी है, जो हमें ड्यूटी दी है, अगर लोग ईश्वर को याद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये सब है, मैं ये कहती हूँ कि सच्ची पूजा ईश्वर की यही है कि जो उसने हमें काम दिया है उसको हम ये मान के चल ले कि जो हम ईश्वर से चाहते हैं हम उसका प्रतिनिधि बनकर उसके कामों को करते चले जाएं, तो यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और ये मुझे लगता है, मुझे आत्मसंतोष है कि मैं ये काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा। आपके तो इनफैक्ट जिनसे बातचीत हुई सभी जानते हैं आपको तकरीबन, काफी लोगों को पता है, चाहे वो बरेली का किस्सा है, मुजफ्फरनगर का किस्सा है, चाहे वो सहारनपुर के हैं, तो एक स्टोरीज आपकी हैं विच आई थिंक यूपी में तो सभी लोग जानते हैं, और ये जिले भी सारे ऐसे, हम तो खुद मेरठ के हैं तो पता है कि इलाका तो let's quickly hear a couple of points from Aparna, Simaji and Sanjay, then we take the final words from sir. सर मैं एक बात कहना चाहूँगी. When I joined Rosemary, at that time, I mean, the situation was quite different. Sir knows it better. And I was not carrying that reputation because somebody already tarnished it. So anyways, that is a long time story. So I'm not going into that detailed aspect. But during that time, Sir said the manner in which you dealt with that and the with the boldness you said, Sir, आप मुझे बताइए ना, मैं बताती हूँ अपने बारे में, कोई क्या बताएगा? So Sir said कि that was the day I decided that she's the right person and she'll be going with all the boldness and all. So I try to inculcate, my point is coming towards that I try to inculcate the boldness and out of the way things among my students, and what I get in return, because I used to be very friendly with my students. So somebody, some fine day asked, ma'am, आप हमेशा कहते हैं कोई भी समस्या हो कभी मैम है ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो? तो एक बात पूछूं, आप पर्सनल सा सवाल है, कुछ प्रॉब्लम शेयर कर लूं? I said yes. It was 8 years back. So I was not this much mature as well. So he said कि मैम ऐसा ऐसा आजकल मेरा आपसे फाइनली ये कहने जा रहे थे कि हमको ना बड़ा मरने वरने का ख्याल आ रहा है. तो I was actually shaken कि ये तो बड़े अजीब सी बात हो गई. So then I said, because that person was talking to me on phone, I said अच्छा तुम एक काम करना, तुम इतने टाइम तक के लिए रुक जा, एक बार मेरे से मिल लेना. So he said कि मैम देखिए पता नहीं समय का, मतलब he was very depressed, sounding very depressed. So I said एक बार आना तो सही, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी हम नहीं रोकेंगे.
So when he came, I don't know what I said. I mean, how he narrated his story and all. I said to him only one thing. I said, तुम्हारा मारने का बहुत मन है ना? इतने सारे बदमाश और सफेद पोश वाले भी बदमाश इकट्ठे हैं. पहले एक काम करो, एक पिस्टल लो और इन सबको मार दो और फिर मर जाओ. तो कहता है, मैम ये क्या तरीका है? मैंने कहा, भाई तुमको मरने का शौक है, तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हारे पीछे वैसे भी माँ बाप तो रोएंगे ही, तो कम से कम एक आध को मारोगे तो कुछ तो लोग दुआ देंगे. देन ही रियलाइज्ड कि मैम कहाँ टारगेट करते हैं. आई सेड, उनकी तो कोई गलती है नहीं, माता पिता की, वो बेचारे रोएंगे तो थोड़ा कुछ लोग सपोर्ट में आ जाएंगे कि भाई उसने अच्छा काम किया है. एनीवेज, दैट इज द थिंग. माय achievement is that I have stopped 3 of my students from committing suicide and brought them out of their severe depression. Though I really regret one episode where I was not at all aware, and I mean, something happened with one of the students. So that was the only thing at that time. After that, I make sure that even at midnight, I will always be available to a phone call, and I always say to my students, तुम्हें कभी भी जरूरत हो, कुछ भी बात करनी हो, कुछ पूछना हो, मैम है ना. So this is the biggest thing I feel. And one thing which I like to conclude up with, that we often talk about character, ethics, moral values, what degradation of it. What is the remedy? The remedy is, I ask all my students also and everybody who is coming in contact with me, that first of all, you need to focus on your own self. Then to the smallest unit of the family. If you are setting a live example by your own personality and by the smallest unit of your own family, you will not need to do anything else. You are providing the live example, and the students, young generation, even the aged people, they learn a lot and they appreciate the live examples. As we can say it, Sir is a live example in front of us. So we are following it on the same track. I wish that everybody should follow. One thing which I discussed with Sir, Sanjay Sir also, though I have never discussed it earlier, but today I feel I should discuss it because this is a public forum. Once I was, during some occasion, I was reading Sir's CV or biodata or credits to his life. And there came a word which says that Mr. Jagdish Luthra was blind since birth. You won't believe it. I shared it with Sir before this episode because I have already shared. So now I am not having any hesitation in repeating it. I stopped it over there and my mind it struck. Is it so? That means my inside person has never taken him as a person with some sort of deformity. And why the deformity is there? Why it is dancing on our head? So what I feel, this is the real inspiration and live example, and which can be an inspiration to many of the people of this field. You should make your personality, your character, your ethical norms in such a manner so that any of your weakness will overpower all that. And when the people they'll meet you, that weakness, it is supposed to be gone in some sort of their backdrop of it. With this, I end up my voice. All yours, Sanjay sir. Over to you. Yeah, Sanjay Sharma and Seema ji, quickly, so that then we have a final word from sir. सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. विद्या मंदिर क्लासेस में दिल्ली में जैसे मैं पढ़ाती थी, तो वहाँ पे हमारे क्लास में लगभग 50 स्टूडेंट्स रहते थे. तो एक बार मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन था, क्लास लेनी थी सैटरडे मॉर्निंग. क्लास चेंज भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इतनी मॉर्निंग में कोई पहुंचता नहीं है. तो मुझे सर की चीज़ें याद आई कि सर की क्लास में कितना डिसिप्लिन रहता था. मैं स्टूडेंट्स के लिए गई क्योंकि उनका मंडे एग्जाम था, सैटरडे क्लास थी. तो मैंने यही बोला कि देखो मेरा थ्रोट में इन्फेक्शन है, फीवर भी है, बट मैं इसीलिए आई हूँ कि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारी क्लास वेस्ट ना हो. बस मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को दोबारा ना बोलना पड़े, एक बार तुम ध्यान से सुनना और डिसिप्लिन मेंटेन करना. मुझे आज बिल्कुल भी वॉइस डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए.
50 स्टूडेंट्स से 11th क्लास के छोटे बच्चे शोर थोड़ा बहुत कर ही देते थे। तो सर उस दिन उन्होंने पिन ड्रॉप साइलेंस में 2 घंटे पूरी क्लास अटेंड करी। अटेंड करने के बाद मैंने उनसे लास्ट के 10 मिनट से पहले हम लोग पूछते थे, जैसे 10 मिनट्स रह गए कि बेटा कोई चीज़ मुझे रिपीट करनी है, कोई प्रॉब्लम है? तो स्टूडेंट्स ने कहा नहीं मैम ऑल क्लियर, सब कुछ हमें आ गया समझने, एग्जाम है हमारा, हम अच्छा करेंगे। मैंने कहा आपको यही प्रॉमिस करना है कि आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए। कई पेरेंट्स की कॉल भी आई कि आपका ये कोई बच्चों को ये सब चिप रहा है। तो मेरे को उसी दिन सर याद आया, मैंने बोला कि देखो जैसा डिसिप्लिन आज तुमने किया है ना, ऐसा हमने रोजमेरी में होता था हमारे यहाँ। उसके बाद उन बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि जब तक उनसे नहीं कहा जाता था बहुत डिसिप्लिन से पढ़ते थे। मेरे सर के बारे में लास्ट के 10 मिनट्स में जब उनके कोई डाउट्स नहीं थे, सर के बारे में ही बताया। तो वहां से वो इतने इंस्पायर्ड हो, काफी सेलेक्ट है बच्चे, सेलेक्टेड हो गए, मतलब अब तो प्रोफेशनल हो गए। वो ये लगभग 2010-11 की बात है जब बच्चों से था। अभी भी उनसे बातचीत होती है तो वो स्टूडेंट पूछ लेते हैं, कोई कहीं पढ़ रहा है कोई कि मैम आपके सर कैसे है। तो आप ये सोच सकते हो कि सर की चीजें स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि टीचिंग में मेरा कभी भी प्लान नहीं था आने का, सर को देख के सर से इंस्पिरेशन मिली, मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला फील्ड सेलेक्ट करूंगी। अदरवाइज जैसे मेरा नेट और यूजीसी क्लियर हुआ था, रिसर्च में जाना चाहती थी मैं। काफी बार सर कंपटीशन की तैयारी जरूर करती थी, पर मेरा अपने सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। सर ने सिखाया था कि जो तुम्हें पसंद है उसको करो, तो जब पैशनेट तभी हो सकते हो। तो ये चीजें सीखी सर से। आज यही चीजें है कि अगर स्टूडेंट्स अगर जुड़ते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हमेशा मैं सर को, मतलब सर का एग्जाम्पल जरूर देती हूँ कि सर जब ऐसे पहुंच सकते हैं, कोई नहीं कह सकता सर ब्लाइंड है, कि सर ने कभी लगा ही नहीं, जैसे कल्पना ने बोला भी था कि सर एकदम से आवाज से पहचान लेते थे, चलने से पहचान लेते थे। तो मेरे को भी, हमें भी, हम लोग डिस्कस भी करते थे कि यार ये सही भी है या हमें कुछ धोखा तो नहीं हुआ है। बट ये चीजें सर के इतने दिनों तक अभी भी हम इतने टच में हैं, सर से सब चीजें सीखी। स्टूडेंट्स को हम यही कोशिश करते हैं, एथिक्स और करेक्टर तभी आता है अगर हमारा डेडिकेशन और स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन हो। जैसे मेरा ये फील्ड है टीचिंग का, कल्पना के और आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। आज पेरेंट्स भी हमसे अटैच्ड हैं इसी वजह से। साथ में एग्जाम्पल चाहिए, मेरिट में तो कोई ऐसा नहीं जो सर को नहीं जानता हो। अगर मेरे यहाँ कोई भी रिलेटिव है तो अपने आप ही सर के पास अपने आप चले जाएंगे, पूछेंगे। आज विद्या मंदिर क्लासेस में भी, मेरिट में भी जैसे है, सर को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने जो सिखाया है वो हर जगह हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है कल्पना का डेडिकेशन, आपका, ये सब चीजें हमें सब रोजमेरी से स्टार्टिंग से मिली है और ये हमने अडेप्ट की है। और एडेप्टेशन अगर हो गया और हमारी लर्निंग अच्छी हो गई तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मैंने शिक्षा ली और आप मेरे गुरु है, रोल मॉडल है, और मैं आपसे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके इस टीचिंग फील्ड में हूँ। अदरवाइज सर जानते हैं बैकग्राउंड की कहीं हमारे यहाँ अलग अलग चीजें हैं, बट मैंने टीचिंग का सिर्फ सर से इंस्पायर्ड होके अपना कलेक्शन, मतलब इस फील्ड को जो चुना है, इंस्पिरेशन सर थे, इसी वजह से इस फील्ड में। थैंक यू सो मच सर। संजय शर्मा, Yes, you would. आप भी क्विकली। मैं केवल मूव फॉरवर्ड के लिए कह सकता हूँ कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि एज गार्जियंस, एज पैटर्न्स ऑफ द यंगर जनरेशन, वी शुड गेट बैक टू द टाइम when education was not a profit generating commercial exercise. These days, largely speaking, no offense to VMC or any other institution, these have become kind of industry, whereas this was a pious service. So let us shift back to those times when education was for learning and not for any other purpose. Secondly, we should train our kids and our students not to go for those packages and do what they want in life. Be a good man, good person first, and then maybe earn later. These days, the first year student or the second year student is talking, okay, so and so has got this package in his placement cell and all that. So we have to, give a broader picture to the students and to a person, at least to those who are around us. So let us get back to what we got from sir, and we got those good things we got in our time. We should pass them on, as Seema is already doing. So let's move forward in that direction. Yeah, absolutely right. And I think now we have final parting words from sir. Sir, may I request you, sir? That is, though it is rightly believed that all is well, that ends well. And every one of you have given me a pleasant satisfaction,
happiness. And if I find anywhere myself, I am in the heaven only because of you. I believe educated is one who knows the way, shows the way, and goes the way. Sometimes students ask me, sometimes parents ask me, is it practically possible? I say, of course it is. It is practical and practically possible. Why? I think we all are human beings and all of us have the same belief, faith, and style of living. So, to be gentle, to be disciplined, this feeling can come in even our grandchildren if while sleeping, while going to bed, to ask your children to ask themselves what you have done today and what you are to do today, next day. Thank God that you have been blessed with this day, and thank God that you will be doing something tomorrow. So if with this feeling we make our children sleep in time, early to sleep, early to rise, makes a person healthy, wealthy, and wise. Whereas this time has made nights days and days nights, which is wrong. Try to change this habit of my grandchildren so that their cycle of life should not get disrupted. Thank you for listening me and sharing your viewpoints with me. We are all together on the same platform and enjoying what one cannot think of. Thank you, everybody. Sanjay. Thank you, sir. Thanks a lot. And in fact, there are no questions, but there are a lot of appreciation and there are a lot of positive comments by the audience and viewers. And I've been sharing it on the screen. And thank you so much, sir, for your blessings and for the time you have spent and given us today, in spite of the hectic schedule, and shared your views, shared your thoughts. And also, I also thank my, you can say, I'll not say other panelists, co-hosts. हम लोग इकट्ठे थे, हम 5 स्टूडेंट्स और सर के साथ आज गपशप हुई, बातचीत हुई, तो I thoroughly enjoyed and thank you so much. And सर आपको बहुत बहुत नमन, धन्यवाद. Thank you, buddy. जय हिंद, जय भारत. I am the junior most among all of you, and sir is the so it's like